Welcome dear students. So today we have lecture 4 in application of derivatives, and today you will see two important theorems called Lagrange mean value theorem and Rolle's theorem. So first I am starting with Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem, in short we call it LMVT. What is it? If a function f of x is continuous in closed interval a to b, differentiable in open interval a to b, then there exists at least one point x equal to c such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, where c belonging open interval a to b. So this is our Lagrange mean value theorem. If we have a function f of x continuous in closed interval a to b, differentiable in open interval a to b, then there exists at least one point x equal to c at which derivative is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, where c belonging a to b means c will be a value in within open interval a to b. Now how does it come? So we will discuss geometrical interpretation of LMVT. Geometrical interpretation of LMVT. Geometrically, what is meaning of Lagrange's mean value theorem? So I am drawing a diagram. Clear? तो स्टूडेंट डायग्राम को देखिए. Now in this diagram, if I ask you slope of line AB, slope of line AB will be what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope of line AB. And what will be the slope of this red line? Slope of red line means slope of tangent, that will be f dash c. So मैंने जो डायग्राम बनाया है
let there is curve y equal to f of x having points A and B on having points capital A and capital B. Let there is curve y is equal to f of x having points capital A and capital B. Now slope of AB, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अगर हम लोग लेग्रांजे थ्योरम का फॉर्मूला देखें तो लेग्रांजे थ्योरम के फॉर्मूले में राइट हैंड साइड इज व्हाट, राइट हैंड साइड इज स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी एंड लेफ्ट हैंड इज व्हाट, लेफ्ट हैंड इज एफ डैश सी. एफ डैश सी मतलब डेरिवेटिव एट सी एंड डेरिवेटिव एट सी विल बी व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी. सो नाउ स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनना, लेग्रांजे थ्योरम के फॉर्मूले में राइट हैंड होती है कर्व के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप. राइट हैंड साइड इज स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व एंड लेफ्ट हैंड इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. दो स्लोप इक्वल कब होते हैं, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. तो अब जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं दैट स्टेटमेंट इज according to LMVT, there will always be at least one point in A comma B on the curve y is equal to f of x at which tangent drawn is parallel to line joining end points of the curve. That is the geometrical meaning of Lagrange mean value theorem. Lagrange का जो फॉर्मूला होता है उसमें राइट हैंड साइड स्लोप होता है, राइट हैंड साइड इज स्लोप, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व. ए बी का स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. सो राइट हैंड साइड इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी इज लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स. एफ डैश सी, एफ डैश सी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो लैग्रांजे थ्योरम ये कहती है टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स. स्लोप इक्वल मीन्स टू थिंग्स आर पैरेलल. नाउ फ्रॉम द डायग्राम वी कैन वेरीफाई इट कि लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व मस्ट बी पैरेलल टू एट लीस्ट वन टेंजेंट विद इन द इंटरवल ए टू बी. आप इस डायग्राम में देखो कैपिटल ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट कर्व पे जरूर मिलेगी. हियर वी आर गेटिंग टू, तो एटलीस्ट वन टेंजेंट मस्ट बी देयर. सो फ्रॉम द Lagrange's theorem there will be at least one point in the interval at which tangent is parallel to line joining end points of the curve. That is the meaning of geometrical meaning of Lagrange's mean value theorem. We have a curve y is equal to f of x having endpoints a and b. Then as per Lagrange's theorem, line joining two endpoints must be parallel to at least
one tangent drawn at the point in the interval a to b. Is it? So in the name of Lagrange's mean value theorem, you have to remember the formula f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a, where a comma b is our interval in which we are considering the curve. Fine. Now I am coming to problems. Our first problem is if f of x is equal to log of x follows LMVT. LMVT, Lagrange's mean value theorem, in the interval 1 to 3 find value of c. Clear? A function f of x is equal to log of x, f of x is equal to log of x is given to us, and function is following LMVT, then we have to find the value of c. So how to make it? Applying LMVT in the interval 1 to 3, f dash c is equal to f3 minus f of 1 divided by 3 minus 1. Now, student, tell me about this one, f dash c. What is the meaning of f dash c? Differentiation at c. Function is log x. Log x का differentiation क्या होगा? 1 upon x. So f dash c how much? 1 by c. f of 3 log 3, f of 1 log 1, denominator is 2. In this way, c is equal to 2 upon log 3. Is this okay? Log 1 कितना होगा? Log 1 will be 0. Log 1 has value 0. So c will come 2 upon log 3. Now further we can write it 2 times log of e to the base 3. I have applied property of log here. log अभी डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऊपर ले आया. ऊपर ले आया मीन्स रेसिप्रोकल ले लिया. log has property after taking reciprocal, नंबर एंड बेस इंटरचेंज. तो अभी क्या था? log 3 टू द बेस ई, ऊपर आके क्या हो गया? log of e to the base 3. Is this okay? So our answer is c is equal to 2 times log of e to the base 3. Now I am taking next problem. Our next problem is if f of 1 is equal to minus 2, f dash x greater than or equal to 2, where x belong to open interval 1 to 6. Then we have options. Option A, f of 6 less than 8. Option B, f of 6 greater than or equal to 8. Option C, f of 6 is equal to 5. And option D, f of 6 less than 5. Here in this problem, there is no information regarding LMVT. फंक्शन की वैल्यू 1 पे गिवन है, डेरिवेटिव के बारे में बताया गया है, इंटरवल गिवन है. नाउ वी हैव टू चेक वैल्यू ऑफ f ऑफ 6. सो इस प्रॉब्लम में LMVT लगेगा, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा, ये हमें कैसे समझ में आना चाहिए. तो सिंपल सा लॉजिक है. इंटरवल इज गिवन 1 to 6. एट वन एंड ऑफ इंटरवल
फंक्शन की वैल्यू गिवन है, एट द अदर एंड ऑफ इंटरवल फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है. For a given interval at one end value is given, at the other end value is required, derivative is also given. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती हैं? इन द फॉर्मूला ऑफ लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम. लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में क्या क्या आता है? एफ ए एफ बी. एफ ए एफ बी क्या होते हैं? फंक्शन की वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल. सो इंटरवल इज गिवन, एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल value of function they are given, required, derivative is given. So all these can be connected through the formula of LMVT. तो प्रॉब्लम में LMVT का नाम नहीं लिया गया है, but from my side I am going to talk about LMVT. So I have written using LMVT in the interval 1 to 6. Using LMVT in the interval 1 to 6, so f dash c is equal to f6 minus f1 divided by 6 minus 1, where c belonging interval 1 to 6. So it implies that f dash c is equal to f6 minus f1 minus 2 divided by 5. So f dash c is equal to f6 plus 2 divided by 5. f dash c is equal to f6 plus 2 divided by 5. अच्छा, here interval given is closed. यहाँ पे इंटरवल जो था वो क्लोज गिवन है. अब मैं यहाँ पे ये लिखूँगा सेंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग 1 to 6. So f dash c should also be greater than or equal to 2. Now from these two I can club f of 6 plus 2 divided by 5 greater than or equal to 2. In this way f of 6 greater than or equal to 8. So I have got my answer, that is f of 6 greater than or equal to 8. That's my answer. F of 6 greater than or equal to 8. Clear? So main thing in this problem was the name of LMVT was not taken. As per given data, we have decided to use LMVT, and then following LMVT clearly we have got our answer, that is f of 6 greater than or equal to 8. Is it? One more problem I am taking. Find which function does not obey LMVT in the interval 0 to 1. Option A, f of x is equal to 1 by 2 minus x, x less than half, 1 by 2 minus x whole square, x greater than or equal to half. Option B,
f of x is equal to mod x. Option C, f of x is equal to sine of x upon x, x not equal to 0 and 1 when x is 0. And option D, f of x is equal to x into mod x. Clear? Now, here in this problem, we have to answer which of the following function is not obeying LMVT. Out of these four options, which function will not obey LMVT? देखिए, LMVT, Lagrange mean value theorem. For Lagrange mean value theorem to be applicable, what are the our requirement? Function must be continuous. Where continuous? In the closed interval a to b. And the second condition, differentiable. Where differentiable? In the open interval a to b. इस पे ध्यान दीजिएगा. Lagrange mean value theorem की दो कंडीशन होती है. उसमें से पहली कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड होती है? कंटिन्यूटी. एंड वेयर कंटिन्यूटी? इन क्लोज इंटरवल ए टू बी. और सेकेंड कंडीशन होती है डिफरेंशियबिलिटी. वेयर डिफरेंशियबिलिटी? इन द ओपन इंटरवल ए टू बी. स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. हमें लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशियबिलिटी चाहिए होती है ओपन इंटरवल में. नाउ अब जब ये प्रॉब्लम सामने आता है तो आप में से मैक्सिमम को जो ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है वो बी और डी. क्यों? बिकॉज ऑफ मॉड एक्स. मॉड एक्स को देखते ही तुरंत आपके माइंड में आता है कि यही वाला कल्प्रिट है. नहीं, हियर इन दिस प्रॉब्लम बी और डी हमारे आंसर नहीं है. उन्होंने हमसे क्या पूछा है? डज नॉट ओबे LMVT. LMVT को कौन ओबे नहीं करता है? तो आंसर बी और डी नहीं है. मॉड एक्स को देख के आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मेरी बात ध्यान से सुनना. मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स डिफरेंशिएबल होता है कि नॉट डिफरेंशिएबल? यस, मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल होता है. लेकिन मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है? जीरो पे होता है. मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है? जीरो पे होता है. हियर इन दिस प्रॉब्लम इंटरवल इज 0 to 1. फॉर LMVT टू बी अप्लीकेबल डिफरेंशियबिलिटी हमें रिक्वायर्ड होती है किसमें? ओपन इंटरवल में. तो हियर इन दिस प्रॉब्लम हम डिफरेंशियबिलिटी किस में देखेंगे? ओपन इंटरवल 0 to 1 में देखेंगे. और ओपन इंटरवल 0 to 1 में ये क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे. सो LMVT इज अप्लीकेबल. चलो मैं एक एक करके ऑप्शन पे आता हूं. तो पहले हम लोग बी और डी को ही लेते हैं. आई एम राइटिंग सिंस mod x and x into mod x are differentiable in open interval 0 to 1, mod x and x into mod x are differentiable in open interval 0 to 1. So LMVT is applicable in LMVT is applicable in options B and D. Is this okay? Because of mod x, we generally think that B and D, they will not follow LMVT. But what I am saying here, B और D में LMVT फॉलो होगी. इंटरवल इज 0 to 1, सो डिफरेंशियबिलिटी रिक्वायर्ड होगी ओपन इंटरवल 0 to 1 में. मॉड एक्स को दिक्कत होती है 0 पे, बट डिफरेंशियबिलिटी देखी जाती है ओपन इंटरवल में. सो बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल 0 to 1, क्लियरली दीज टू आर डिफरेंशिएबल. सो LMVT इज अप्लीकेबल. हमसे पूछा गया है LMVT किस पे अप्लीकेबल नहीं होगी. सो नाउ वी विल चेक A and B option. We will check A and B option. So I am writing, we will check option A for LMVT. We will check option A for LMVT.
और चेक करने के नाम पे क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी. नाउ टेल मी, आई हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. मैंने आपको कंटिन्यूटी के चैप्टर में बताया था, जहां पे डेफिनेशन बदलती है देयर वी चेक कंटिन्यूटी. वेयर डेफिनेशन इज चेंजिंग, डेफिनेशन इज चेंजिंग एट 1/2. तो मैंने लिखा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2. सो LHL लिमिट ओवर f ऑफ 1/2 माइनस h. क्लियर? मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इट विल कम 0. RHL लिमिट ओवर f ऑफ 1/2 plus h, it is also 0. f of 1/2 given 0. f of 1/2 given 0. So f of x is continuous at x equal to 1/2. It implies that f of x is continuous in interval 0 to 1. Now we will check differentiability at x equal to 1/2. So left hand derivative limit over f of 1/2 minus h minus f of 1/2 divided by minus h. We will calculate it. So f of 1/2 minus h, this will be 1/2 minus 1/2 minus h, and f of 1/2 0 divided by minus h. जिसको कैलकुलेट करेंगे इट विल गिव -1. RHD लिमिट ओवर f of 1/2 plus h minus f of 1/2 divided by h. So it will be, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. दिस विल कम 0. RHD का कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कमिंग 0. आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना कर लोगे. सिंस LHD not equal to RHD, so f of x is not differentiable at x equal to 1/2. It implies that LMVT is not applicable for function in ऑप्शन ए. फाइन, हम लोग ने ऑप्शन ए को चेक किया एंड वी आर गेटिंग दैट LMVT इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फंक्शन इन ऑप्शन ए. LMVT is not applicable for function in option A. For LMVT to be applicable, we need continuity as well as differentiability. मैंने ऑप्शन ए को चेक करना चालू किया, कंटिन्यूटी चेक करी. फॉर ऑप्शन ए फंक्शन इज कमिंग कंटिन्यूअस, बट व्हेन आई एम चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी व्हाट आई एम फाइंडिंग, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. इट मीन्स LMVT is not applicable for function in option A. LMVT is not applicable for function in option A. Getting it? LMVT is not applicable for function in option A. Now,
अगर ऑप्शन सी को करना तो वो भी कर सकते हैं. नाउ वी विल चेक फंक्शन in option C. Now we will check function in option C. What is that? F of x is equal to sine of x by x, x not equal to 0 and 1 when x is 0. LMVT applicable होने के लिए this should be continuous as well as differentiable. और कहाँ पे चेक करेंगे? जीरो पे, बिकॉज डेफिनेशन इज चेंजिंग एट जीरो. तो फर्स्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो. क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड LHL. सो लिमिट ओवर f ऑफ जीरो माइनस एच एज स्टैंडिंग टू जीरो प्लस. सो दिस इज लिमिट ओवर साइन ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच. फाइनली इट विल कम 1. साइन ऑफ जीरो माइनस एच माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच साइन एच थीटा बाई थीटा 1. सिमिलरली RHL लिमिट ओवर f ऑफ जीरो प्लस एच. सो इट इज लिमिट ओवर साइन ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच. वंस अगेन साइन थीटा बाई थीटा, इट इज क्लियरली 1. बात करें f0 की, तो f0 इज ऑलरेडी 1. So left hand limit is coming 1, right hand limit is coming 1, f0 is coming 1. So clearly f of x is continuous, f of x is continuous at x equal to 0. या मैं ये लिखूंगा continuous in close interval 0 to 1. इस फंक्शन में कंटिन्यूटी को लेके डाउट था, तो कहाँ पे डाउट था? जीरो पे था. और जीरो पे हम लोगों ने चेक कर लिया, जीरो पे क्या निकल आया? कंटिन्यूअस निकल आया. सो इन अवर इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 to 1, यस फंक्शन इज क्लियरली कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1. नाउ फॉर LMVT टू बी अप्लीकेबल वी चेक कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी. तो कंटिन्यूटी तो चेक कर ली. नाउ स्टूडेंट ध्यान से सुनना, नो नीड टू चेक डिफरेंशियबिलिटी. रिगार्डिंग डिफरेंशियबिलिटी ऑटोमेटिकली डिफरेंशियबल है. हाउ? देखो, इस फंक्शन को अगर दिक्कत होती डिफरेंशियबिलिटी को लेके तो कहां होती? जीरो पे होती, क्योंकि जीरो पे डेफिनेशन बदल रहा है. साइन डिफरेंशियबल होता है, एक्स डिफरेंशियबल होता है, दो डिफरेंशियबल का रेशियो डिफरेंशियबल होता है. सो इफ दिस फंक्शन कैन हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिफरेंशियबिलिटी, तो वेयर कैन इट बी? इट विल बी एट जीरो. बट जीरो पे तो हमें चेक करना ही नहीं है. प्रॉब्लम में पूछा गया था LMVT in the interval 0 to 1. For LMVT we check continuity and differentiability. Continuity we check in close interval and differentiability we check in open interval. So for this function we have to check differentiability in the open interval 0 to 1. Open interval 0 to 1 का मतलब 0 पे चेक नहीं करना है. And other than 0, this function is automatically differentiable. So what to say? LMVT applicable here or not? Clearly applicable. So मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं. Since differentiability we have to check in open interval 0 to 1. So f of x is clearly differentiable in open interval 0 to 1. So LMVT is applicable in 0 to 1. So LMVT is applicable in close interval 0 to 1. For Lagrange's mean value theorem to be applicable, we need
continuity in closed interval, differentiability in open interval. So here in this problem, clearly function is continuous in closed interval 0 to 1, differentiable in open interval 0 to 1. So yes, LMVT is applicable. Okay स्टूडेंट, 4 ऑप्शन थे ABCD, जिसमें B और D को देखते ही बता दिया था LMVT अप्लीकेबल है. ऑप्शन ए को चेक किया तो निकल आया LMVT नॉट अप्लीकेबल. ऑप्शन सी को चेक किया, LMVT applicable. So finally there is option A where LMVT is not applicable. Clear? So अभी तक मैंने आपको ये सब बताया about theorem, Lagrange mean value theorem. In short we call it LMVT. Now we are coming to next very important theorem, एंड उसके नाम में भी आपको आनंद आएगा. सो अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज रोलेस थ्योरम. एग्जाम में इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम बनते हैं. So our next important theorem is Rolle's theorem. Now, इसको जब प्रोनाउंस करने की बात आती है तो कई जगह आप देखोगे ई को गायब कर देते हैं और वहाँ पे बोला रोल्स थ्योरम. कुछ लोग इसे कहते हैं रोलीस थ्योरम. आई एम कॉलिंग इट रोलेस थ्योरम. तो आपकी मर्जी है कि आप इसको रोलीस कहना चाहते हैं, रोल कहना चाहते हैं या रोलेस थ्योरम कहना चाहते हैं. बट प्रॉब्लम के नाम में देखिए क्या छुपा हुआ है, रो, रोने वाला रो और ले थ्योरम. तो यस, इस थ्योरम पे जो प्रॉब्लम बनते हैं वो कई बार रुला देते हैं. कई बार रुला देते हैं कि प्रॉब्लम में रोलेस थ्योरम अप्लाई होनी है, इस मन से ये विचार आना कई बार उसमें समय लग जाता है. सो यू कैन ऑल्सो से कि ये रुलाने वाली थ्योरम है. What will we call it? Rolle's theorem. होती क्या है? If a function f of x is continuous in closed interval a to b, differentiable in open interval a to b, f of a is equal to f of b, then there exists at least one point x equal to c in open interval a to b such that f dash c is equal to 0. Student, after going through statement of Rolle's theorem, आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो लैग्रांजे हुआ. Yes, we can say Rolle's theorem is one of the केस ऑफ लैग्रांजे थ्योरम. लैग्रांजे का फॉर्मूला क्या था? एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. लैग्रांजे में 2 कंडीशन होती थी. हियर वी हैव 3 कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन इज एफ ए इक्वल टू एफ बी. तो व्हाट इज अवर थर्ड कंडीशन इन रोलेस थ्योरम? इफ वी अप्लाई इट इन द फॉर्मूला ऑफ लैग्रांजे, क्लियरली वी विल गेट एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो यू कैन ऑल्सो से रोलेस थ्योरम इज वन ऑफ द केस ऑफ लैग्रांजे थ्योरम. कि लैग्रांजे के फॉर्मूले में एफ ए इक्वल टू एफ बी रख दें तो हमें क्या मिल जाता है? एफ डैश सी इक्वल टू 0. सो डिफरेंस बिटवीन लैग्रांजे एंड रोलेस थ्योरम, इन केस ऑफ लैग्रांजे ओनली 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए टू बी. बट इन केस ऑफ रोलेस थ्योरम, continuity required, close interval a to b,
differentiability required, open interval a to b, and the third condition, at the end point of interval, function must have same values, f a equal to f b. Then we will say f dash c equal to 0, where c is point belonging open interval a to b. Now हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस थ्योरम. चलिए, एफ डैश सी क्या डिनोट कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी. डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0. नाउ स्लोप 0 का मीनिंग क्या होता है? स्लोप 0 का मीनिंग होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैव स्लोप इक्वल टू 0. तो एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट इज 0. तो रोलेस थ्योरम कह रही है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0. तो ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग ये हुआ, if we have a curve y equal to f of x having values equal at end point, then within interval there must be a point C at which tangent is parallel to x-axis. We have a curve having value equal at end points, then there must be at least one point at which tangent is parallel to x-axis. That is the meaning of Lagrange theorem. We have a curve y equal to f of x we have curve y equal to f of x continuous as well as differentiable. Then within interval there must be at least one point C at which tangent is parallel to x-axis. आप देखो, ये जो मेरा डायग्राम जा रहा है, एंड पॉइंट्स पे ग्राफ की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल होने के लिए ग्राफ लौट के वापस आया, तो ग्राफ नीचे गया फिर ऊपर जाके वापस आया, सो सच दैट वैल्यू ऑफ द ग्राफ एट एंड पॉइंट इक्वल. इस चक्कर में बीच में ऐसे दो पॉइंट मिल गए वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एज पर रोलेस थ्योरम there must be at least one point within interval at which tangent parallel to x-axis. F dash c slope of tangent equal to 0 means tangent parallel to x-axis. तो रोलेस थ्योरम ये कहती है कि कर्व के ऊपर एक ना एक टेंजेंट ऐसी जरूर मिलेगी which is parallel to x-axis if our graph is continuous, differentiable as well as values at end points are equal. Is it? So that is about Rolle's theorem. Now coming to the problems. पहले मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ. इस तरह का प्रॉब्लम आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है. Verify Rolle's theorem. Verify Rolle's theorem for f of x is equal to x into x plus 3 e raised to the power minus x by 2 in the interval
-3 to 0. Clear? Function is given to us, interval is given -3 to 0, and we have to verify Rolle's theorem. We have to verify Rolle's theorem. Now student, in school exam you get this problem, then what will be your working? इसको समझिएगा. Verify Rolle's theorem means what? We will do two jobs. Which two jobs? First we will check whether theorem is applicable or not. Theorem applicable होने के लिए क्या क्या जरूरी? Continuity, differentiability and FA equal to FB. If these three conditions are satisfied, Rolle is applicable. But ये प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होगी. First we will check whether theorem is applicable or not. Then using the formula of Rolle's theorem, f dash c equal to 0, we will get value of c. Now if the value of c is belonging to this interval, only then our job will be completed. मैं लिख रहा हूं यहां पे. First we will check conditions for Rolle's theorem, and then using result f dash c equal to 0, value of c will be found. Right? First we will check conditions for Rolle's theorem, and then using result f dash c equal to 0, value of c will be found. Since f of x is multiplication of two continuous and differentiable functions, polynomial and exponential, so f of x is clearly continuous in -3 to 0 and differentiable in -3 to 0. F of x is clearly continuous in -3 to 0 and differentiable in -3 to open interval -3 to 0. Also f of -3 is equal to f of 0 equal to 0. So Rolle's theorem is applicable. Fine. So first of all we have checked whether theorem is applicable or not. For that purpose continuity has been checked, differentiability has been checked, value of the function at the end points. After getting all three conditions verified, we are writing Rolle's theorem is applicable. लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ है. हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे. Now f dash c equal to 0. Since f dash x is equal to dy by dx of x into x plus 3 e to the power minus
x by 2. So dy by dx of x square plus 3x into e to the power minus x by 2. This will come x square plus 3x into e to the power minus x by 2 into minus 1 by 2 plus 2x plus 3 e to the power minus x by 2. Taking e to the power minus x by 2 common, we have minus x square by 2 minus 3x by 2 plus 2x plus 3. So, e raised to the power minus x by 2 minus x square by 2 plus x by 2 plus 3. This is our f dash x. So, f dash c equal to 0 implies that e to the power minus c by 2 into minus c square by 2 plus c by 2 plus 3 equal to 0. No, this can never be positive, this can never be 0, this can never be 0. Exponential term is always positive. Exponential term is always positive. So, minus c square by 2 plus c by 2 plus 3 equal to 0. It implies that minus c square plus c plus 6 equal to 0. It is c square minus c minus 6 equal to 0. We will write c minus 3 c plus 2 equal to 0. In this way, c is equal to 3 and c is equal to minus 2. Since c belonging minus 3 to 0, so c equal to 3 cannot be possible. So, c is equal to minus 2, our फाइनल आंसर. फाइन. तो स्टूडेंट, पहले हम लोगों ने ये चेक किया थ्योरम अप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी. आफ्टर गेटिंग वेरीफाइड दैट थ्योरम इज अप्लीकेबल, वी हैव यूज्ड रिजल्ट ऑफ रोलेस थ्योरम. फ्रॉम it we are getting the value of c which is belonging to interval. Now in this way our job is completed. तो पहले आप वेरीफाई करो कि थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है. आफ्टर दैट get the value of c. Now c is belonging to interval. Yes, in this way theorem is verified. Okay. Now student, we have our next problem on Rolle's theorem, and this problem was in exam of IIT. Function is given. Function follows Rolle's theorem, it is given. Then we have to find alpha, where alpha is given in function. Fine. Now, so we do not have to check Rolle's theorem applicable or not. It is directly given that Rolle's theorem is applicable. We have to apply formula of Rolle's theorem. Since Rolle's theorem is given applicable, so f dash c equal to 0, where c belonging interval 0 to 1. Now f dash c डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं. सो f dash x will be how much? X to the power alpha into 1 by x plus alpha times x to the power alpha minus 1 log of x. So it is x to the power alpha minus 1 into 1 plus alpha log x. So f dash c, it will be
c raised to the power alpha minus 1 into 1 plus alpha log c is equal to 0. Now, अब आप इस पे ध्यान दीजिए, c raised to the power alpha minus 1, it will always be positive. Why positive? c 0 to 1 है और पॉजिटिव की कोई भी पावर क्या होगी? पॉजिटिव. तो दिस टर्म also this is an exponential term, so always positive. So for this expression to be 0, 1 plus alpha time log c equal to 0, it implies that alpha is equal to minus 1 upon log c. So yes, we have got the value of alpha, but the problem is there we must have some numeric answer for alpha, as the options are given in numeric form and we are getting alpha in terms of c. So now I will say, since c belonging 0 to 1, so log of c less than 0. फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने लॉग का ग्राफ देखा था. 1 का लॉग क्या होता है? 0, और 1 से छोटे का लॉग क्या होता है? नेगेटिव. c 0 to 1 है तो log c क्या होगा? नेगेटिव. इन दिस वे व्हाट विल बी अल्फा? अल्फा ग्रेटर देन 0. सो स्टूडेंट, इन दिस प्रॉब्लम वी आर नॉट एबल टू गेट exact value of alpha, but we are able to decide sign of alpha, and that is alpha positive. Now, out of these 4 options, in which option we are getting the positive value of alpha? That is clearly option D. So our answer is option D. अब बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइएगा कि अगर पॉजिटिव ऑप्शन 2 होते हैं, सारे ऑप्शन पॉजिटिव होते तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते. प्रॉब्लम ये सोच के ही बनाया गया है कि वन कैन डिसाइड अल्फा पॉजिटिव. सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन जस्ट गिव 1 ऑप्शन पॉजिटिव. सो वी हैव 1/2 फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the equation an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 up to a1x equal to 0 has a positive root x equal to alpha, then the equation n times an x to the power n minus 1 n minus 1 an minus 1 x to the power n minus 2 up to a1 equal to 0 has a positive root which is option A less than alpha, option B greater than alpha, option C greater than or equal to alpha, option D equal to alpha. Okay. Student, this problem was in exam of AIEEE, जिस एग्ज़ाम को आज जेई मेन के नाम से जानते हैं. इसका नाम पुराने समय में AIEEE था. So you can say this problem was in exam of JEE main. An equation is given to us having positive root alpha. Then we have to determine root of second equation. Now all of sudden आपको लग रहा होगा कि लैग्रांजे थ्योरम और रोलेस थ्योरम से बाहर निकल के ये कैसा रूट और इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ गया. नाउ हियर इन दिस प्रॉब्लम वी विल यूज रोलेस थ्योरम. हाउ, कैसे क्लिक करेगा? आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन देम?
सेकेंड वन इज क्लियरली डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. सेकेंड इक्वेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यस और नो. अगर आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी. यस. सो वी कैन से इन द प्रॉब्लम हमसे पूछा गया है रूट ऑफ डिफरेंशिएशन. मेरे से क्या पूछा गया? सेकेंड इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव रूट विच इज. सो प्रॉब्लम में हमसे रूट पूछा गया है. किसका रूट पूछा गया है? सेकेंड इक्वेशन का. और सेकेंड इक्वेशन क्या है? डिफरेंशिएशन. किसका डिफरेंशिएशन है? फर्स्ट का. नाउ इस प्रॉब्लम को देख के एग्जाम में आपको रोलेस थ्योरम कैसे याद आनी चाहिए? रोलेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश सी इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक के दिन याद करो, रूट किसे कहते हैं? रूट एक्स की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को 0 कर दे. तो रोलेस थ्योरम में हम क्या करते हैं? एफ डैश सी इक्वल टू 0. एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो सी क्या हुआ? एफ डैश का रूट हुआ. तो रोलेस थ्योरम से हमें पता लगता है रूट. किसका रूट पता लगता है? डेरिवेटिव का. हियर इन दिस प्रॉब्लम दिस इक्वेशन इज डेरिवेटिव and we are looking for its root. So we will apply here Rolle's theorem. How? I am assuming first equation f of x. So f of x is equal to an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1. In this way a1 x. Clear? Given एफ एल्फा इक्वल टू 0. ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? मैंने लिखा एफ एल्फा इक्वल टू 0. हाउ? फर्स्ट इक्वेशन हैज रूट एल्फा. सो एल्फा पुट करने पे इक्वेशन एग्री होगी. सो दैट्स द रीजन एफ एल्फा इक्वल टू 0. लिख लीजिए. सिंस एल्फा इज गिवन रूट, ऑल्सो एफ 0 इक्वल टू 0. ये कहां से आया? ये हमें दिखाई दे रहा है कि 0 रख दो तो 0 रखने पे पूरा क्या हो जाएगा? 0. सो एफ 0 इक्वल टू 0. सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, and f0 is equal to f alpha. So from Rolle's theorem, Rolle's theorem, f dash c equal to 0, where c belonging 0 to alpha. It implies that f dash x has root c in the interval a to b. In this way, second equation has root in the interval a to b. स्टूडेंट इसको समझिएगा. आप में से मैक्सिमम को यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगा. देखो यहाँ तक का मैटर क्लियर होना चाहिए. आई हैव टेकन फर्स्ट इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ बीइंग पॉलिनोमियल. एफ 0 इक्वल टू एफ अल्फा. रोलेस थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, एफ ए इक्वल टू एफ बी. सो यस, रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल. सो एफ डैश सी इक्वल टू 0 वेयर सी बिलोंगिंग 0 टू अल्फा. अब यहां से समझिएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0. आई एम सेइंग एफ डैश एक्स इज रूट सी. देखो एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? सी रखने पे डेरिवेटिव 0 हो गया. सी रखने पे डेरिवेटिव 0 हो गया तो सी क्या हुआ? डेरिवेटिव का रूट हुआ. क्वाड्रेटिक में रूट के बारे में पढ़ा था. रूट किसे कहते हैं?
x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को जीरो कर दे, तो डेरिवेटिव को जीरो कौन कर रहा है, c, तो c क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव का रूट कहलाएगा। तो मैंने क्या लिखा, f डैश x हैज रूट c इन द इंटरवल a टू b। a टू b को हम लोग कर लेते हैं 0 टू अल्फा, a टू b को कर देते हैं 0 टू अल्फा। सो f डैश x हैज रूट c इन 0 टू अल्फा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन अगर f ऑफ x है तो सेकंड इज क्लियरली f डैश, सेकंड क्या है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन है, तो f डैश x मींस व्हाट, सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन हैज रूट c इन 0 टू अल्फा। प्रॉब्लम में हमसे सेकंड इक्वेशन का रूट पूछा गया था, हम लोग ने क्या निकाला, सेकंड इक्वेशन का रूट c है, और c कहाँ है, 0 से अल्फा के बीच में, तो सेकंड इक्वेशन का रूट c क्या हुआ, 0 से अल्फा में है, मींस अल्फा से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, अल्फा से छोटा हुआ। व्हाट इज आंसर, दिस प्रॉब्लम हैज आंसर ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। दूर दूर तक रोलेस थ्योरम का नाम नहीं लिया गया था, प्रॉब्लम के डेटा को देखकर वी हैव डिसाइडेड टू यूज रोलेस थ्योरम। फर्स्ट इक्वेशन का रूट गिवन है, सेकंड इक्वेशन का पूछा गया है, सेकंड क्लियरली फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, तो प्रॉब्लम में रूट पूछा गया है डिफरेंशिएशन का, और जब भी डिफरेंशिएशन का रूट पूछा जाए मींस रोलेस थ्योरम, क्योंकि रोलेस थ्योरम से हमें रूट पता लगता है किसका, डेरिवेटिव का। बताइए ऐसे हो गए, इसी रोलेस से पता लगता है डेरिवेटिव का रूट। इसी चीज को मैं अभी और एक प्रॉब्लम के थ्रू फर्दर एक्सप्लोर कर रहा हूं, और now you should also put heading और आप हेडिंग ऐसे लिखो to decide location of root of given equation using Rolle's theorem. To decide location of root of given equation using Rolle's theorem. To decide location of root of given equation using Rolle's theorem. क्या करेंगे, let given equation equal to f dash x get f of x integrating f dash x get two values of x, get two values of x, a and b, such that f of a is equal to f of b. Now, from Rolle's theorem, now from Rolle's theorem, f dash x means given equation
will have at least one root in the interval a to b. देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रोलेस थ्योरम से हमें रूट किसका पता लगता है, डेरिवेटिव का. तो वैन एवर वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन and we want to apply Rolle's theorem, then that given equation must be assumed f dash x. Why? आपको रूट किसका निकालना है, गिवन इक्वेशन का. रोलेस थ्योरम से रूट किसका निकलता है, डेरिवेटिव का. तो गिवन इक्वेशन हमारे लिए क्या होगी, एफ डैश होगी. लेकिन रोलेस थ्योरम अप्लाई किस पे होती है, फंक्शन पे. तो अगर आप रोलेस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन होना चाहिए. आपके पास है क्या, एफ डैश. आपको चाहिए फंक्शन. कैसे आएगा, इंटीग्रेशन करके. नाउ रोलेस थ्योरम अप्लाई होने के लिए देयर मस्ट बी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो आफ्टर गेटिंग फंक्शन यू विल सर्च. क्या सर्च करोगे, ऐसी दो वैल्यूज सर्च करोगे जिसके लिए फंक्शन इक्वल हो जाए. नाउ आपके पास फंक्शन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, फॉलो हो रहा है. तो फ्रॉम द रोलेस थ्योरम आप क्या बोलोगे, डेरिवेटिव 0, एफ डैश सी 0 इन द इंटरवल ए टू बी. डेरिवेटिव 0 मतलब डेरिवेटिव का रूट है, मतलब गिवन इक्वेशन का रूट है. मैंने क्या लिखा, एफ डैश एक्स मीन्स गिवन इक्वेशन विल हैव एट लीस्ट वन रूट इन ए टू बी. आपने गिवन इक्वेशन को एफ डैश लिया, रोलेस लगेगी फंक्शन पे, तो आपने फंक्शन निकाला इंटीग्रेशन करके. अब रोले अप्लीकेबल होने के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तो आपने दो वैल्यूज ढूंढी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी. नाउ अप्लाइंग रोलेस थ्योरम यू विल से एफ डैश सी इक्वल टू 0. एफ डैश सी इक्वल टू 0 मीन्स डेरिवेटिव हैज रूट, और हमने डेरिवेटिव को क्या माना है, गिवन इक्वेशन. इट मीन्स गिवन इक्वेशन हैज रूट वेयर इन द इंटरवल ए टू बी. आप चाहो तो ऐसा लिख लो, नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0 implies दैट. अब ऐसा लिख लो, नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0 implies दैट एफ डैश एक्स मीन्स गिवन इक्वेशन विल हैव एट लीस्ट वन रूट इन ए टू बी. ठीक है, चलिए मैं इस पर एक प्रॉब्लम ले रहा हूं. अवर प्रॉब्लम इज इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, देन at least one root of equation ax square plus bx plus c equal to 0 lies in option A interval 1 to 3, option B interval 1 to 2, option C interval 2 to 3, option D interval 0 to 1. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट द प्रॉब्लम कि what is given in the problem through which we can have idea about Rolle's theorem. प्रॉब्लम में ऐसा क्या है जिसको देखकर आपको रोलेस थ्योरम याद आनी चाहिए. अभी अगर आप प्रॉब्लम को देख रहे होगे तो प्रॉब्लम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखने में लग रहा होगा कि एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो इस प्रॉब्लम को देख के आपके मन से क्या आवाज उठेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है. अभी आप रोलेस थ्योरम के ऊपर पढ़ रहे हो तो मे बी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम में रोलेस थ्योरम अप्लाई होगी.
बट एग्ज़ाम में पेपर में जहाँ पे पूरा सिलेबस आता है वहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम रख दिया जाए तो इसको देख के आपके मन में क्या विचार आएगा? प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रॉब्लम में ऐसा क्या है जिसको देख के रोलेस थ्योरम समझ में आनी चाहिए? जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको अच्छे से रट लीजिए। प्रॉब्लम हैज लैंग्वेज एटलीस्ट वन रूट। याद करो, एटलीस्ट वर्ड लेग्रांजे में भी था, रोलेस में भी था, और रोले में रूट होता है। पहले एटलीस्ट की बात करो। एटलीस्ट वर्ड हमने किस में देखा है? रोलेस थ्योरम, लेग्रांजे दोनों में देखा है। जो फाइनल कंक्लूजन होता है लेग्रांजे और रोले का, वो कंक्लूजन क्या होता है? देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c। तो एटलीस्ट वर्ड एज वेल एज रूट वर्ड, ये दोनों मिलके हिंट दे रहे हैं रोलेस थ्योरम का। रोलेस थ्योरम से हम क्या पता करते हैं? रूट किसका पता करते हैं? डेरिवेटिव का। अगर प्रॉब्लम में केवल रूट होता तो रोलेस लगेगी कि नहीं लगेगी, गारंटी नहीं थी। बट बिकॉज ऑफ दिस हिंट एटलीस्ट एंड रूट, वी मस्ट थिंक अबाउट रोलेस थ्योरम हियर। नाउ अब ये डिसाइड हो गया कि हमें रोलेस थ्योरम अप्लाई करनी है। ये डिसाइड हो गया कि हमें रोलेस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो मैंने अभी आपको जो एल्गोरिथम लिखवाई थी कि रोलेस थ्योरम मुझे अप्लाई करनी है, तो हाउ शुड आई स्टार्ट माय प्रॉब्लम? जिस इक्वेशन के बारे में, रूट के बारे में, जिस इक्वेशन के रूट के बारे में पूछा गया है उसे हम क्या एज्यूम करेंगे? f डैश x। तो आई एम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम एज्यूमिंग f डैश x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। I am determined to apply Rolle's theorem. I have to find root of this quadratic. From Rolle's theorem we get information about root of derivative. So this equation must be derivative for me. तो f dash x equal to quadratic. Now रोले अप्लाई किसके ऊपर होती है? फंक्शन के ऊपर। तो ये तो f dash x है, तो इससे मैं फंक्शन निकालूंगा। So f of x is equal to x cube by 3 plus bx square by 2 plus cx। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने इंटीग्रेशन किया है। आगे चल के हम लोग इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो कंफ्यूज मत होइएगा, वो उल्टा करके देखें। किसको अगर डिफरेंशिएट कर देते तो ये आ जाता। वैसे फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे सर ने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रटवाए होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अच्छा, प्लस मैंने एक टर्म लिख दी डी। फाइन, कि व्हेन एवर वी डू द इंटीग्रेशन आखिरी में कांस्टेंट रखा जाता है, जो कि मैंने यहाँ डी रखा है। मे बी फिजिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो अगर ये डी यहाँ पे लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी चलेगा। तो मैंने ये इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। नाउ अब मैं ज़रा इस कंडीशन पे जा रहा हूँ। इस कंडीशन को देखिए, may I write this condition as a by 3 plus b by 2 plus c equal to 0। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस लिखवाई थी उसमें क्या लिखवाया था? गिवन इक्वेशन को f डैश लीजिए, इंटीग्रेशन करके f x निकाल लीजिए, तो f ऑफ x आ चुका है। अब उसके बाद हमारी जॉब क्या होती है? दो वैल्यूज x की ढूंढना सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। यही सबसे मेन पार्ट होता है कि नाउ रिगार्डिंग दिस फंक्शन आपको x की दो वैल्यूज पता करनी है सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। आपको ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको फंक्शन में रखने पर फंक्शन बराबर आ जाए। इसको देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी, जस्ट टेल मी इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, इस फंक्शन में x की जगह क्या रखा जाए सो दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड। बहुत सिंपल है,
in this function what should we place in place of x, what should we put in place of x, x की जगह क्या रखें कि ये बन जाए a by 3 b by 2 plus c, tell me a by 3 b by 2 plus c लाने के लिए x को क्या रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट f of 1। कंफ्यूज मत होना, आप में से कई लोगों को दिक्कत होगी कि 1 क्यों रख दिया। I want to use this information, that's the reason x equal to 1 must be put. So f of 1 a by 3 plus b by 2 plus c plus d. Now इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, तो I have d. Clear? Some information given to me, उसको यूज करने के लिए मैंने x की जगह 1 रखा and I am getting f1 equal to d. अब स्टूडेंट यहीं से अगला हिंट है, हमारा पर्पस था x की दो वैल्यूज जिनको रखने पे फंक्शन बराबर आ जाए। f1 मेरा d आ चुका है, तो x की दूसरी वैल्यू मैं ऐसी रखूंगा जिस पे फंक्शन d दे। आई हैव f1 इक्वल टू d। नाउ टेल मी, अब आप खुद बताइए यहां पे मैं क्या रखूं जिससे फंक्शन वैल्यू डी आ जाए। f1 डी आ चुका है, फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे डी आ चुकी है, तो दूसरा पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसको फंक्शन में रखने पे फंक्शन डी दे दे। f1 इज डी, x की जगह क्या रख दूं कि ये डी बन जाए, इज इट 0? बोलो। इस स्टेप को वीडियो पॉज करके 2 से 3 बार समझना, रिकॉर्डेड लेक्चर में यही बेनिफिट है कि आपको जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पे वीडियो को रोक के अपने आप को समय दीजिए। ये चीजें अगर आपने अपने आप एक बार समझ ली कभी आपको मिस नहीं होगी। सुनना मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन को एफ डैश लिया, इंटीग्रेशन किया, एफ ऑफ एक्स आ गया। नाउ अपनी जॉब है 2x की वैल्यू पता करना जिस पे फंक्शन बराबर हो जाए, इसको यूज में लेना है, इसके चक्कर में 1 रखना जरूरी है। f1 d आ गया। नाउ f1 d आ गया, मेरे को fa इक्वल टू एफ बी, दो ऐसी वैल्यू पता करनी है जिस पे फंक्शन बराबर हो। 1 पे फंक्शन d के बराबर है, तो वो दूसरा पॉइंट क्या होगा जिसको रखने पे फंक्शन d आ जाए। सो सिंपल, अगर x की जगह 0 रख दिया जाए, x की जगह 0 रख दिया जाए तो फंक्शन क्या बचेगा, d बचेगा। सो f1 इक्वल टू f0। सो f1 इक्वल टू f0, वी हैव गॉट f of 1 इक्वल टू f of 0। सो from Rolle's theorem, there will be at least one point C belonging 0 to 1 such that f dash c equal to 0, such that f dash c equal to 0. Now f dash c equal to 0, f dash c equal to 0, derivative 0, it implies that f dash x equal to 0 has at least one root in the interval 0 to 1. It implies that given equation it implies that given equation, and what was the given equation? Quadratic ax square plus bx plus c equal to 0
has at least one root in the interval 0 to 1. So जो इक्वेशन हमें, जिस इक्वेशन के बारे में हमसे रूट पूछा गया था, हमारा आंसर क्या निकला? गिवन इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1. ओके स्टूडेंट, सो हियर इन दिस प्रॉब्लम रोलेस थ्योरम अप्लाई होगी, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था. प्रॉब्लम की लैंग्वेज देखकर वी हैव डिसाइडेड यूज ऑफ रोलेस थ्योरम, एंड देन जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने डेरिवेटिव लिया. क्यों लिया? क्योंकि रोलेस से रूट हमें पता लगता है डेरिवेटिव का, बट रोलेस थ्योरम अप्लाई होती है फंक्शन के ऊपर. तो गिवन इक्वेशन को एफ डैश लिया, उसका इंटीग्रेशन करके एफ एक्स आया, देन दो पॉइंट ए और बी पता किए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. देन यूजिंग रोलेस थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0, विच मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज रूट. एफ डैश एक्स मीन्स quadratic has root. The final answer, quadratic has at least one root in the interval 0 to 1. Clear? So with this, I am completing today's lecture. In today's lecture, we have done two important theorems, Lagrange mean value theorem and Rolle's theorem. In our next lecture, we will do next application of derivative, which is monotonicity. Okay? Thank you.